हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले मेथड्स एंड अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस बुक की यूनिट सेकंड, अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है और जो स्टूडेंट BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 2 वाले हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पर करके देख सकते हैं अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Institutional approach, a consistent and organized pattern of behavior or activities established by customs or law can broadly be called an institution. The institutional approach was one of the main pillars of political science discipline till the first half of the 20th century. Organized pattern जो है एक्टिविटीज़ का और उनके बिहेवियर का जो कि कस्टम और लॉ को कंसिस्ट करते हैं वो इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो वन ऑफ द मेन पिलर है पॉलिटिकल साइंस का टिल दी फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century. Many scholars tried to understand various institutions. For example, Woodrow Wilson, former president of United States of America, compared government of USA and Europe and pointed out what the American government could learn from European government. The institutional approach has certain specific character that help us to understand the approach in detail. कई स्कॉलर उन्होंने इंस्टीट्यूशन अप्रोच को अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं। उनमें से एक एग्जांपल है वुडरो विल्सन का, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएसए के। उन्होंने यूएसए और यूरोपियन गवर्नमेंट को एनालिसिस करके कंपेयर करके कुछ पॉइंट आउट किए हैं जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट को यूरोपियन गवर्नमेंट से लर्न करने चाहिए। और ऐसे ही इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो अलग अलग करैक्टर डिफाइन करती है जो स्कॉलर्स हैं उनके थ्रू, जिससे कि हम इस अप्रोच को अच्छे से समझ सकें। गाय पीटर लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एज फॉलो। Characteristics of institutional approach. Legalism. The institutional approach gave law center place in comparison of various institutions. Even in the example of Wilson mentioned above, we can notice the prominence of law through his emphasis on type of government. The prominence of law can broadly be attributed to the fact that the law constitute the basis of political life and affect the behavior of citizen in significant way. जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो लॉ को सेंट्रल प्लेस देती है इन द कंपैरिजन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि हम जो लॉ का जो प्रोमिनेंस है वो काफ़ी मेजर एट्रीब्यूट है इन द टर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। और पॉलिटिकल लाइफ में भी वो काफ़ी हेल्प करती है समझने के लिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को। Structuralism. For the scholar of the institutional approach, the structure determines the behavior. Therefore, major institutional features, the ideal type of government, parliamentary or presidential, various models of parliamentary government and presidential government were extensively researched. The structure studied in this approach tended to be formal and constitutional. जो स्ट्रक्चरलिज्म है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में कई स्कॉलर हैं उन्होंने स्ट्रक्चर को उनके बिहेवियर पर डिटरमाइन किया है। जैसे कि मेजर इंस्टीट्यूशनल फीचर जो है वो किसी मतलब एक कंट्री की आइडियल टाइप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि किसी कंट्री में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, किसी में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। ये अलग अलग मोड है गवर्नमेंट के जो कि इसमें स्टडी किए गए हैं। Historicism. The contemporary political institutions are undoubtedly embedded in their historical condition. The institutional approach consisted of historical analysis of the institution that the researcher is set to understand and analyze. The understanding of historical condition help the researcher to understand the pattern of development for appropriate prediction. The historical condition also consider the role of complex relationship between society and politics.
that offer a rich perspective of political system. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल जो अप्रोच है उसको हम स्टडी करते हैं, उसमें जो उनकी क्या हिस्टोरिकल कंडीशन रही होंगी, किस वो किस मतलब इंस्टीट्यूशन में उनके क्या वेरियस मेथड थे जो कि वो यूज़ करते थे, इसको हम स्टडी करते हैं। और हिस्टोरिकल कंडीशन जो है उन पर रिसर्च करके हम आज की डेवलपमेंट पर भी अपनी अप्रोप्रिएट प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि हमने कहाँ से कहाँ तक डेवलपमेंट किया और उस डेवलपमेंट में हमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, और आगे हम उन पर प्रेडिक्शन कर सके कि अगर हम इस मेथड को चूज़ करेंगे, एक पर्टिकुलर अलग मेथड को चूज़ करेंगे तो उसमें हमारे क्या आउटकम्स होंगे। Normativity. The institutional approach was normative in nature. It was concerned with the question like what life ought to be and the role of good government in achieving it. The normative analysis of the institutionalist came under attack by behaviorist scholar, which will be dealt in the later section. System approach. The system approach in political science has its origin in the critique of traditional approach of comparative politics. The concept of system allowed the approach to replace excessive focus on the state, formal institution and historicism, and allow us to understand extra legal matter including social and cultural institution. It thus form a multidisciplinary or interdisciplinary approach to understand political system. This approach is extremely helpful in sorting out large data and understanding pattern of system. It also enables the researcher to understand the direction of development of the political system without emphasizing too much on the history or normative question by objectively studying said variable. जो सिस्टम अप्रोच है, ये अप्रोच जो है ट्रेडिशनल अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। इसमें जो सिस्टम अप्रोच में हम इन पर फोकस ना करके, जैसे कि स्टेट, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, हिस्टोरिसिज्म, नॉर्मेटिविटी, इन टॉपिक्स पर फोकस ना करके हम सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन पर फोकस करते हैं। और ये सिस्टम अप्रोच मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है पॉलिटिकल सिस्टम में। ये अप्रोच हमें एक लार्ज डाटा प्रोवाइड करती है टू अंडरस्टैंड पैटर्न ऑफ सिस्टम, और ये डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को एक अलग नज़रिए से देखती है। जैसे कि हम इसमें पिछले सेशन में हमने हिस्ट्री और नॉर्मेटिव और फॉर्मल एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन पर बात की थी, तो इसमें हमें ये कल्चरल एंड सोशल जो इंस्टीट्यूशन है उस पर फोकस करके स्टडी करती है। डेविड एस्टन सिस्टम एनालिसिस. डेविड एस्टन pioneered the movement of system analysis in the political science discipline. His celebrated work, A System Analysis of Political Life, provided an original set of concepts for arranging at the level of theory and interpreting political phenomena in a new and helpful way. जो डेविड ईस्टन है वो पायनियर माने जाते हैं सिस्टम एनालिसिस थ्योरी के इन पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में। उनकी एक बुक है, उनका एक वर्क है जिसका नाम है सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। उसमें उन्होंने एक ओरिजिनल सेट प्रोवाइड किया है कॉन्सेप्ट का, जिसमें वो लेवल ऑफ थ्योरी इन एंड इंटरप्रेटिंग पॉलिटिकल फिनोमिना इन अ न्यू एंड हेल्पफुल वे, जिसमें उन्होंने अपनी इस थ्योरी को, सिस्टम एनालिसिस थ्योरी को एक डिस्क्राइबिंग, एक अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। Easton stood for a political theory that is capable of explaining both national and international political systems that help us more in comparison. He rejected the scholars of the traditional approach who were obsessed with the normative analysis and championed the cause of the need for scientific method in understanding the political system. Easton has extensively written on system analysis in his various work, and let us try to summarize his theory in a brief way. David Easton coined a new definition for the term politics and political system instead of using existing definitions that were prevalent in political theory. For Easton, politics is the authoritative allocation of values. A political system, therefore, is a set of interaction abstracted from the totality of social behavior through which values are allocated for society.
जो डेविड ईस्टन है उन्होंने एक अपनी अलग, उन्होंने जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जैसे कि नॉर्मेटिव अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, उसको रिजेक्ट करके अपनी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम पर अपनी एक न्यू थ्योरी, न्यू डेफिनेशन टर्म कॉइन किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स जो है वो अथॉरिटेटिव अलोकेशन की मतलब अथॉरिटेटिव अलोकेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और पॉलिटिकल सिस्टम जो है इज अ सेट ऑफ इंटरेक्शन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम टोटलिटी ऑफ सोशल बिहेवियर थ्रू विच वैल्यूज वर अलोकेटेड फॉर सोसाइटी। इसमें ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक सेट है अथॉरिटी का और सोशल बिहेवियर का, जिसमें वैल्यू जो है वो सोसाइटी के लिए अलोकेटेड होती है। Structural functionalism. Structural functionalism is the third approach in comparative politics. Structural functionalism means explaining the function of political structure as a tool of investigation. For example, if a researcher wants to compare the institution of the Prime Minister in India and the United Kingdom, one could do so by understanding the function performed by the respective Prime Minister of India and the United Kingdom and find out similarities and differences arrangement within a political system that perform a function or certain function are broadly called as structure. These functions can be either simple or complex. Further, it can be case that a single structure can perform a function or a group of structure together perform a complex function. जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है ये थर्ड अप्रोच है इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म जो है ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें रिसर्चर जो है वो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है कंट्रीज़ के उनको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर के वर्क को कंपैरिजन करें, उनके जो फंक्शन है वो फंक्शन परफॉर्म किए गए उनको कंपेयर करें, तो हम उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे। और ये जो डिफरेंसेस होंगे जो इनके जो डिफरेंसेस है और जो इनके फंक्शन है उन्हीं को हम स्ट्रक्चर कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। और ये फंक्शन या तो सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अगर ये सिंपल होंगे तो एक सिंगल स्ट्रक्चर एक सिंगल स्ट्रक्चर उन्हें परफॉर्म करेगा। अगर जैसे कि या तो जैसे प्रेसिडेंट ही सारे फंक्शन परफॉर्म करे कंट्री में, अगर ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स होंगे यानी कि इनके जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन कॉम्प्लेक्स होंगे तो एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर परफॉर्म करेगा। जैसे कि इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर है और उनके मिनिस्टर्स हैं तो वो परफॉर्म करते हैं इस तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।